হার্টের উন্নত চিকিৎসা পেয়ে আজ তারা সুস্থ। পরিবারের দুশ্চিন্তা কেটে গিয়েছে তাদের পরিবারের। সৌজন্যে জামশেদপুরের ব্রহ্মানন্দ নারায়ণ হাসপাতাল পুরুলিয়া জেলার প্রায় 20 জন হার্টের রোগীদের বিশেষ চিকিৎসা পরিষেবার মধ্য দিয়ে পুনরায় তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনে নজির গড়ল ব্রহ্মানন্দ নারায়ণ হাসপাতাল। জামশেদপুরে অবস্থিত ওই হাসপাতালে পুরুলিয়া জেলার প্রায় 20 জনেরও বেশি হার্টের রোগী চিকিৎসা করানো হয়। পুরোপুরিভাবে সুস্থ হয়ে এখন প্রায় স্বাভাবিক জীবন ফিরে এসেছেন। আর হার্টের রোগ থেকে মুক্ত পাওয়া সেই সমস্ত রোগীদের নিয়ে এবার পুরুলিয়া শহরে একটি স্বাস্থ্য সচেতন শিবিরের আয়োজন করল ব্রহ্মানন্দ নারায়ণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই স্বাস্থ্য সচেতন শিবিরে মূলত হার্টের রোগ থেকে মুক্ত পাওয়া রোগীরা সকলের সামনে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। পাশাপাশি ব্রহ্মানন্দ নারায়ণ হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা এবং চিকিৎসক ও নার্সদের সুব্যবহার সম্পর্কেও বিশেষ বার্তা প্রদান করলেন তারা। একই সঙ্গে চিকিৎসা করানোর পর এখন তারা কেমন রয়েছেন সমস্ত কিছুই জানালেন। ওই দিনের বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ব্রহ্মানন্দ নারায়ণ হাসপাতালের ফ্যাসিলিটি ডিরেক্টর ডাক্তার বিনীত রাজ, ডাক্তার অভয় কৃষ্ণ, ডাক্তার অজয় আগরওয়াল এবং ডাক্তার আখলাক আহমেদ, মার্কেটিং হেড নিমিশ কৃষ্ণা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অনির্বাণ মুখার্জি, সৌগত চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর মিশ্রা, দুর্গা আগরওয়াল, মনীশ কুমার সহ অন্যান্যরা। ব্রহ্মানন্দ নারায়ণ হাসপাতালের ফ্যাসিলিটি ডিরেক্টর ডাক্তার বিনীত রাজ জানান, চিকিৎসা পরিষেবায় পুরুলিয়া জেলার রোগীদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা রয়েছে তাদের হাসপাতালে। অর্থনৈতিক দিক থেকে যে সমস্ত রোগীরা পিছিয়ে পড়া তাদের চিকিৎসা পরিষেবায় বিশেষভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। আনন্দটা তো নিশ্চয়ই থাকবে। মানুষের একটা যখন অসুবিধা থাকে শরীরে, তখন সেই শরীরের অসুবিধাটা যখন চলে যায় তখন একটা খুব স্বাভাবিকভাবে একটা আনন্দ আসে এবং এটা আবেগের ব্যাপার। কেননা একটা চোখেই আমার যদি সামান্য ছানি অপারেশন হয়, তাহলেও ছানিটার পর যখন আমি ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি তখন আমার একটা আনন্দ হয়। আনন্দটা তো স্বাভাবিক। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে কি বলবেন কিসের ব্যাপারে? এই যে একটা পরিষেবা পেলেন, পরিষেবার ব্যাপারে এটা তো অনেক দিন ধরেই দেখেছি যে হাসপাতালের পরিষেবা ভালো, হাসপাতালের পরিষেবা ভালো এবং কত দু একটা ক্ষেত্রে একটু যেন লেকুনা থেকে যায়। কীরকম দেখুন, আমি স্টেন্ট বসানোর পর আমার বন্ধুবান্ধব অনেকেই অনেক জায়গায়, কলকাতায়, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, ভেলোর সব জায়গায় স্টেন্ট বসিয়েছে বা বাইপাস করিয়েছে। তাদেরকে অ্যাডভাইস দেওয়া হয়েছে তাদের লাইফস্টাইলটা। আমাদের ব্রহ্মানন্দে দেওয়া হয়েছে ডায়েট চার্টটা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারপর আর লাইফস্টাইলটা কেমন হবে। আমার যেমন অ্যারোবিক এক্সারসাইজটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ ট্রেন্ড, পোস্ট ট্রেন্ড অপারেশন। কেন না, অ্যারোবিক এক্সারসাইজ করলে আমার ব্লাড ফ্লো খুব ভালো থাকবে, স্বাভাবিক এটা। এবং সেই ক্ষেত্রে অ্যারোবিক এক্সারসাইজটা হলো ওয়াকিং, সাইক্লিং এবং সুইমিং। এইগুলো হলো অ্যারোবিক এক্সারসাইজ। তা আমাকে কিন্তু সেইটা কোনো রকমভাবেই কোনো লেভেল থেকে একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়নি বা অ্যাডভাইস করা হয়নি যে আপনি এই করবেন, সেই করবেন। কেবলমাত্র একটা দেওয়া হয়েছিল লিস্ট, সেই লিস্টে এইভাবে এই খাওয়া চলবে, 20 ml এর বেশি তেল খাওয়া চলবে না, বাটার চলবে না, এই চলবে না, সেই চলবে না, সেসব ঠিক আছে। এবং সেটা হয়তো আমার লাইফস্টাইলে আমি নট লেস দ্যান 40 ইয়ার্স আমি ওই স্টাইলেই মেনটেন করি আমার শরীরটাকে। এবং আপনি কতদিন ধরে এই সমস্যায় ভুগছিলেন? আমি এইটা মোটামুটি ভাবে 7-8 মাস ধরে। ये मेरी आपको वचन है कि हम आपको पैसे की कमी के कारण हम आपको रिफ्यूज नहीं करेंगे और हमसे जितना भी, मैं कुछ अभी यहाँ परसेंटेज नहीं बोल पाऊंगा, हो सकता है किसी को हमको ज्यादा परसेंटेज देना पड़े, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसको कितनी कमी है। बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि किसी को भी पेमेंट की कमी के कारण हम रिफ्यूज नहीं करेंगे पेशेंट को और उसका सेम वे में ख्याल रखेंगे। ये था बेसिकली कि हम 15 साल से पुरुलिया के पेशेंट्स का सारे स्पेशलिटी में स्पेसिफिकली हार्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम कुछ पेशेंट्स जो हार्ट ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल से कराया है, उनको हम बुला के उनकी जो जर्नी है वो हम उनके मुंह से ही शेयर करवाना चाहते थे, ताकि एक सोसाइटी में एक मैसेज जाए कि आपको अपने हार्ट के बचाव के लिए क्या करना चाहिए और टाइमली ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए और आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो वो एक उनके मैसेज से और कैसे फैसिलिटी हम हमारे हॉस्पिटल में दे रहे हैं, एक मेन मोटिव वही था। और एक और मोटिव था कि कैसे हम सोसाइटी को जागरूक कर पाएँ कि कैसे वो अपना हार्ट का, हेल्थ का केयर करें और क्या क्या प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं, ताकि वो हॉस्पिटल आने की ज़रूरत ही ना हो। और अगर ऐसा मौका आता है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो टाइमली आप एक्सेस लें और टाइमली सही डॉक्टर से सही फैसिलिटी में ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि टाइम जो होता है, जो फर्स्ट 90 मिनट्स या फर्स्ट 2 घंटे का होता है, उस पर अगर आप सही डिसीजन ले लेंगे और सही जगह पहुंच जाएंगे तो आपकी जान भी बच सकती है।
तो ये एक मोटिव था और बेसिकली हम यही चाहते हैं कि सोसाइटी हेल्दी रहे और जितना भी प्रिकॉशन है हार्ट हेल्थ को करने के लिए, जैसे वॉकिंग है और आपका रेगुलर चेकअप कराने चाहिए। हमारा हेल्थ चेकअप जो होता है वो आप 6 मंथ में अगर आप हेल्थ चेकअप कराएं तो आपको सही टाइम पे पता लग जाएगा कि आपका हार्ट का कंडीशन कैसा है और आप सही ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन आए ही ना। यही एक मैसेज था। और सबसे एक बार जो पेशेंट आए थे उनसे भी एक मैसेज देना था कि वो कैसा कर रहे हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस था, ताकि क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे जो हार्ट अटैक होता है उसमें कई लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि हार्ट अटैक हुआ है। कई लोग सोचते हैं कि पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो डिले हो जाता है। तो टाइम इज बोलते हैं मशीन, तो उसको आपको एक ध्यान में रखना है। और टाइम इज वेरी क्रूशियल, टाइम इज वेरी क्रूशियल, टाइम इज मसल जो बोला जाता है कि टाइम आपको सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है। जब तक कई लोग बोलते हैं गैस हो गया है, गोली खा के सो जाते हैं। और ये जो मैसेज है कि कैसे अवेयरनेस हो वो बहुत जरूरी होता है कि आपको कैसे पता लगे कि हार्ट में प्रॉब्लम है और कितने जल्दी आपको सही ट्रीटमेंट लेना है। पुरलिया के बारे में, पुरलिया का जो पेशेंट है इसके बारे में कुछ देखिए, पुरलिया के पेशेंट्स हम वही मैंने जो बोला स्पीच में कि 15 साल से हम पुरलिया के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। हमने काफ़ी लाखों पेशेंट्स को, मतलब ओपीडी में यहाँ भी हमारे डॉक्टर्स आते हैं। तो पुरलिया एक हमारा एक अभिन्न जो होता है ना अंग रहा है हमारे सिस्टम का। तो हम पुरलिया के पेशेंट्स को आगे भी जितना भी जो मदद कर पाएँ, जो एक पेशेंट ने बोला कि फाइनेंशियली हमको हेल्प की ज़रूरत होगी, तो आगे भी मैंने एक टीम मेंबर भी यहाँ पे एक अपॉइंट कर दिया है जो आपको जो भी आपका प्रॉब्लम हो, अगर ट्रीटमेंट रिलेटेड हो या फिर पेमेंट रिलेटेड हो, कोई भी आपको एक 1 पर्सन है, क्योंकि अब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको लगता है कहाँ किससे बात करें, कैसे वो हम कराएं। तो हमने एक स्पोक दिया हुआ है जो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको पूरा आपको हेल्प कर देगा हर वे। अनिर्बन है। और हमारे डॉक्टर्स भी यहाँ फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। अभी और भी हम फ्रीक्वेंटली यहाँ कैंप करेंगे ताकि हम टाइमली पेशेंट्स